Actually, I would like to add one more thing over here. No parent is thinking of today, मेरा बेटा बड़ा हो क्या, बेटी बड़ी हो क्या, अच्छा इंसान बन पाएगा कि नहीं. ओह, ये तो सबसे अहम बात, तो हम ये तो छोड़ ही देते हैं. बिकॉज सिर्फ साइंटिस्ट है, एक्टर है, डॉक्टर है. सही है. व्हाट अबाउट बीइंग ह्यूमन. यस, अच्छा एक इंसान बन पाता है वो. और इसकी कोई इंटरेस्टिंग वे में शिक्षा या जस्ट मैसेजेस बहुत कम हम स्कूल में देते हैं. हम एंड इट्स अगेन अबाउट अस कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस सिस्टम में. बच्चों को सिखाया नहीं जाता, वो ऑब्जर्वेशन करके ही उससे सीखते हैं. सो कैन वी क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर द चाइल्ड टू लर्न ऑल पॉजिटिव थिंग्स एंड actually blossom into positive person for a sustainable tomorrow. वेरी वेरी राइट. आई थिंक यू ऑल आर टोटली ऑन द राइट ट्रैक. आप लोग और भी बड़े पैमाने पे ये सब करा करिए. जैसे कोई भी चीज मतलब शुरुआत होती है तो वो जब तक इवेंट रहता है तब तो उसकी बातें होती हैं, चर्चे होते हैं और इंटरव्यूज होते हैं, बट 2-4-6 दिन बाद वो कहानी फिर से वैसी की वैसी हो जाती है. तो इस परिसर है, अगर ये 30 साल से कर रहे हैं, 33 साल से कर रहे हैं, तो कर तो रहे हैं, साल भी कर सकते हैं, कर तो रहे हैं. और हमेशा हम यही सोचते हैं, यही हमारी गलती हो जाती है कि हम इतना छोटा सा एक इवेंट करते हैं, फिर साल भर तो कुछ नहीं करते. मगर अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे. कदम उठाना जरूरी है. बूंद बूंद से सागर बनता है. क्या पता इनके एक इवेंट से कितने आइडियाज टीचर्स को आते हैं, वो आगे लेकर जाते हैं. सो यू सी इट्स अ रिपल इफेक्ट. आपको सिर्फ वो स्टोन दिख रहा है अभी, बट इट हैज अ रिपल इफेक्ट. Actually, ये event is just one bit what we are doing. Otherwise we are working with almost 50 private schools in Mumbai and 29 BMC schools in Mumbai. So, and every year we have different schools. We approach different schools and we empower them. So this event is just just to say thank you to our teachers and how I mean it's really great of you that you came here and you inspired them. How art can be integrated in the mainstream academics, because it has been always called as extracurricular activity or co-curricular. But why co-curricular? It should be it should be your way of living. I wish, देखिए, we need more people like you. आप लोग आपके जैसे लोग और पार्टिसिपेट करें, एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सुधारें, थोड़ा क्रिएटिव ही बनाएं, जैसी आपकी थिंकिंग है, तो मैं बड़ी खुश हो जाऊंगी, क्योंकि आई एम अ पेरेंट टुडे. No, and in fact, see, you can afford, you must have put your children into, the best possible school you can get. But your child is going to interact with a society who are not getting that kind of education. And that is the most, scary part today, that our 80% जो जनता है हमारी, they are going to school where it's just rote learning. हम लोग सिर्फ अंग्रेजी पढ़ना आना चाहिए बच्चों को, यानी वो शिक्षित है, वो हमारा गोल बन गया है. But that shouldn't be the goal. That should just be part of the journey. The goal is something. So Parisar Asha believes in an education system where we are not only providing knowledge, but it's your skills, all different skills what you require to live a peaceful, happy life. And very important thing is the attitude. Yes. Is the right attitude, because I think that is missing in our society today. Whatever problems we are facing today, it is just because we don't have the right attitude. So if that is integrated in the mainstream academics, and that's what Parisar Asha is doing. We design curriculum, we support our school curriculum, SSC board, CBSE board, and any other board, where we are training teachers how they can integrate, even they can be in that same system. We can't change the system. I hope, today I hope we even make a few changes. But in the system. I feel people should important. ISR is individual social responsibility. So if every person does their bit, I think we will really have अच्छे दिन आएंगे, और मैं इस समय ये जरूर जोड़ना चाहूंगी, नॉट आउट ऑफ एनी कंपल्शन, बट जोड़ना चाहूंगी कि जो फिल्म हमारी चौक एंड डस्टर है ना, इन्होंने अभी एटीट्यूड के बारे में बात की. इट इज गोइंग टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल. It is going to change their understanding of education. Education, like she said, हम सोच रहे सिर्फ इंग्लिश सीख लेंगे ना तो हम एजुकेटेड हो गए,
नहीं, अच्छे इंसान बनना और अपने गुरु को सम्मान देना, प्यार देना, ये बहुत बड़ी बात है और होनी चाहिए, मगर हम वो करते नहीं। तो हम अच्छाइयां छोड़कर हम सिर्फ क्वालिफाइड होना चाह रहे हैं, बट दैट क्वालिफिकेशन इज नॉट गोइंग टू मेक यू अ हैप्पी इंडिविजुअल। तो ये सीख जो है ना, ये कुछ सही बातें हो रही हैं यहाँ पर। अब जूही जी, कल ही आपकी फिल्म की रिलीज हो रही है, कुछ कहना आप प्रेस शो पे क्यों नहीं गए? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी फिल्म के लिए, लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि फिल्म भी एजुकेशन पर ही बेस्ड है? एजुकेशन पर ही बेस्ड है, मगर आई एम अ ट्रू बिलीवर ऑफ बॉलीवुड। आज मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरी फिल्म इंडस्ट्री को कि उन्होंने ये चांस दिया है मुझे कि हम जब फिल्म बनाए, हम जो भी फिल्म बनाए, पीपल इंस्पायर होते ही हैं, सही तरीके से, गलत तरीके से भी। आज मेरी करियर की शायद सबसे अहम और सबसे सुंदर फिल्म रिलीज होने वाली है, जो दिलचस्प बहुत है और जो मैसेजेस हैं वो इतनी खूबसूरती से आते हैं, और इसका क्लाइमैक्स इतना कमाल का बन गया कि जो भी जाएगा अंदर तालियां बजाते बाहर आएगा। And this film will change your attitude towards your teachers. It will open your mind to what they mean to you. हम सब एजुकेशन की बात करते हैं, मगर हमारे तरक्की पसंद देश के तरक्की पसंद लोगों को एजुकेशन का ट्रू मीनिंग क्या है वो ही नहीं पता। आपको आइडिया नहीं आया कि ये फिल्म आपको इतनी पसंद आए? जब भी किसी एक्टर को कोई फिल्म या सब्जेक्ट पसंद आता है, उसको प्रोड्यूस करता है, आपने नहीं सोचा कि आप उसे प्रोड्यूस करते? मैंने एक्चुअली सोचा था, आपने बिल्कुल सही बोला है कि अगर कोई और नहीं मिलता ना, मैं प्रोडक्शन के लिए खड़ी हो जाती, मगर प्रोड्यूसर मिल गए। प्रोड्यूसर आज तक जुड़े हुए हैं। एंड मैं और अच्छी खबर नहीं, मुझे रात तक रुकना पड़ेगा। मैं एक अच्छी खबर अभी दे रही हूँ और 3-4 उसके बाद आज शाम तक हो जाएंगी। राजस्थान हैज डिक्लेयर्ड इट अ टैक्स फ्री, हैज गिवन इट टैक्स एग्जेम्पशन फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ, एंड गॉड विलिंग आज शाम तक 4 और जगह से ये खबर आएगी। मैम, जो आपके बॉलीवुड के एक्टर फ्रेंड्स हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो भी है, आप उनको हिदायत देते हैं कि ऐसी फिल्म बननी चाहिए, आप लोग कुछ ऐसा इनिशिएटिव लो जैसा परिसर आशा ने लिया है, आप उनको बोलते हैं कि क्या, मतलब कोई फिल्म आ जाती है जो कमर्शियली हिट हो जाती है बट उसका मैसेज कुछ समझ नहीं आता है, तो आप उनको बोलते हैं पर्सनली कि ये क्या था? और नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलती। जो भी होता है वो अंदर से निकलता है। किसी को आप बोल नहीं सकते चलो सोशल सर्विस करो। उनका जब दिल जाग जाता है ना, वो खुद ही वहां पर आ जाते हैं और वो करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक योर मीडियम इज वेरी पावरफुल मीडियम। अगर उसका अच्छी तरह से हम लोग प्रयोग करें तो वी कैन रियली सी अ बेटर सोसाइटी टुमारो। That should be the endeavor. At the same time, to get that perfect balance, कि फिल्म अगर सिर्फ एक इश्यू पर बना दी जाए तो वो नहीं चलती, क्योंकि कोई भी पैसे देकर लेक्चर सुनने तो नहीं जाएगा थिएटर में। हमारे पास कोई राइटर्स ऐसी इंटरेस्टिंग वे में कहानी बताएं, कहानी लिखे कि वो दोनों काम कर जाए, आपको एंटरटेन भी करे और आपको बहुत अच्छे आइडियाज भी दे। ये कम होता है और ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट वी यूज थिएटर इन एजुकेशन in our system. Okay. So that really gives, that secured environment for a child to explore different possibilities. And then it becomes for a lifelong learning. Yeah. बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। किसी को और कुछ पूछना है? एक क्वेश्चन जो मेरे दिल में था वो मैं पूछना। प्लीज। कोई आपका बचपन का इंसिडेंट कि आपके पेरेंट्स आपसे कैसा बिहेव करते थे? वो डांटते थे कॉम्पिटिशन के तैयार हो जाओ, या फिर वो आपको खुला छोड़ते थे कि जो करना है वो करो? मैं अब सोचती हूँ हम लोग कितना बदल गए। मेरे मम्मी डैडी बस साल में कभी एक बार स्कूल आते थे। डैडी को तो आधा टाइम ये याद नहीं रहता था अब जूही 5th स्टैंडर्ड में कि 6th स्टैंडर्ड में पहुंच गई है। हाँ, होता है ना। सॉरी, सॉरी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम लोग जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी।